جناب فروق احمد صاحب، جناب فہیم محمود صاحب، جناب جوید صدیقی صاحب، جناب شہزاد نذیر صاحب، جناب ندیم نذیر صاحب، جناب ذیشان افتخار صاحب، جناب عامر ریاض صاحب، جناب عمیر اسماعیل صاحب، میرے لیڈر میاں انجم نثار صاحب، میرے صادق محترم میاں محمد علی صاحب، لاہور چیمبر کی روح رواں خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب، فہیم الرحمان سیگل صاحب، علی حسام اصغر پی پی جی کے چیئرمین، رسول اللہ بھول صاحب، طاہر منظور چوئی صاحب، ہماری کمپین کے انچارج بابر محمود صاحب، ہماری تحقیقی کمیٹی ممبر سرفراز صاحب، ملک عثمان صاحب، ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت تشریف لائے۔ آپ لوگوں نے جس محبت کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح آپ نے پھولوں کی پتیاں منوں کے حساب سے ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں، جس طرح ایک ایک قطرہ الیکشن والے دن آپ نے اپنا پسینے کا یہاں بہایا ہے، اگرچہ وہ زعفران اور عطر کی خوشبو لے کے آیا ہے اس چیمبر میں ان سب باتوں کا آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ کا دیمدار ہوں، اور آپ لوگ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں پہلے دن کہا تھا اب خلق دیکھیں، الیکشن ایک پروسیجر ہے دل کی آواز نکالنے کا۔ جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، شاید ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے، شاید کم ہوا ہے، اس لیے وہ ڈی جی ٹی او میں چلے گئے ہیں۔ ڈی جی ٹی او نے کہا جی ری کاؤنٹنگ کرتے، ری کاؤنٹنگ کا جب کام شروع کرنے لگے ہیں تو ہائی کورٹ چلے گئے۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ لاہور شہر میں ہمیں جس طرح مغلوں کا مقبرے بنے ہیں، شاید ہمارے بھی مقبرے بن جائیں، جس طرح انگریز کو آپ نے یہاں سے نکالا ہے، شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری شکست ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہار جیت اللہ کے بس میں ہوتی ہے، مگر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے 102 سال کی ہسٹری کو وائٹ واش کرنے میں آپ کا ایک ایک قطرہ، جو پہلے دن ایک چھوٹی سی نالی کی صورت تھا، 10 بجے وہ تھوڑا سا چشمے کی صورت بنا، 12 بجے تک وہ ایک اچھا خاصی نہر بن گئی، اور شام تقریباً 7 بجے تک وہ ایک بڑی نہر کی صورت اختیار کر گیا، اور 23 کی رات کو آپ نے اس نہر کو دریا میں پھینکا، تو 23 کی رات کو آپ 23 تاریخ کا الیکشن جیتے۔ 24 کی صبح ہوئی، وہ دریا کھلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، 12 بجے تک وہ دریا کے 2 دریا بنے، 2 بجے 3 دریا بن گئے، شام 8 بجے وہ 5 دریا بن گئے، کیونکہ یہ 5 دریاؤں کی دھرتی ہے۔ جب رات کو بکسے کھلے تو وہ ایک سمندر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور رات کی تنہائی میں، گہرائی میں، پاکستان بھی 27 رمضان کو بنا تھا اور رات کے اندھیرے میں بنا تھا، تو آپ نے رات کے اندھیرے میں نے باہر کاہل کو چاہ دیا۔ ابھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ 7 سمندروں کا پانی کے نیچے آپ جا چکے ہیں۔ مزید وہ تسلی کروانا چاہتے ہیں آپ سے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہرحال انہوں نے آپ لوگوں کے لیے آپ کے ووٹ کی توہین کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ جب عزت آپ لوگوں نے دے دی ہے تو اس عزت کا حال وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر لڑائی جھگڑا تو اسی صورت ہوتا ہے نا جب ایک چیز طے نہ ہوئی ہو، جب ہر چیز طے ہو گئی۔ پہلے دن جس دن ہم نے کاغذ جمع کرائے تو ہمارا نمبر 1 سے 15 تھا، انہوں نے کہا جی ٹاس کریں، کوئی بات نہیں جس طرح آپ خوش ہیں، نہیں ہمیں 1 سے 15 دے دیں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر 16 سے 30 ہمیں نمبر ملا۔ دیکھیں نمبروں سے کچھ نہیں فرق پڑتا، 2 نمبر بھی ان میں تھے، 10 نمبر بھی ان میں سے تھا، 9 2 11 بھی وہی تھے۔ تو اللہ نے جب عزت دینی ہوتی ہے نا کسی کو، اس کے لیے نمبروں کی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے تو ہاتھی والا سلوک 2 سال کی ہسٹری کو بدلا ہے، وہ اس پہ ایکشن ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ وہ ہم وڈرال کرائیں گے۔ 3 گھنٹے پرائم منسٹر صاحب اسی بات پہ ڈسکس کرتے رہے کہ ہراسمنٹ نہیں چاہیے، ایسا کام اب نہیں ہوگا۔ دیکھیں پکار جس طرح اذان ہوتی ہے اس طرح ان سب باتوں کے ساتھ میں اب سب بیٹھے ہیں، انہیں گزارش کروں گا ذرا وہ اپنے کو شیئر کریں، اس کے بعد میں چیف گیسٹ پلیز۔ تھینک یو ویری مچ سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب، ہمارے
वाइस प्रेसिडेंट साहब शाहिद नजीब साहब, आज के हमारे चीफ गेस्ट शेख साहब चेयरमैन CTA एंड सलीमुल्लाह साहब प्रेसिडेंट CTA, वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मजूर चौधरी साहब, उस्मान मलिक साहब चीफ ऑर्गेनाइजर PBG, बाबर महमूद साहब एसोसिएट क्लास कैंपेन इंचार्ज, हमारे जितने यहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, कामरान गोल्डबानी साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, अंकल शेख साहब हमें उमर के फादर नज़र आ रहे हैं, उमर सरफराज साहब हमारे ऑनरेबल EC मेंबर, राना लतीफ़ साहब, आगा जुल्फ़िकार साहब, लाला यासिर साहब, जितने हमारी यहाँ लीडरशिप बैठी है, फ़हीम महमूद शेख साहब, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं सारों के नाम नहीं ले पा रहा, शाहिद साहब, सर आप लोगों को वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने आपको बड़ा तफसीली सारा बताया रिगार्डिंग जो पिछले 1-2-3 हफ्ते से प्रेसिडेंट साहब जिस तरह यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू द टीम कि ये सुबह से लेके रात तक इधर बैठे हैं आपके लिए। अब इलेक्शन इज ओवर, अब हम मुबारकें भी आई थिंक ये 30 नवंबर तक चलती हैं, नाउ 30 अक्टूबर तक, नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। आप लोगों के जो ब्रांदत रोड के इश्यूज थे, मुझे याद है जब हम कैंपेन में आते थे आपके पास, आपके यहाँ पे 2 नुमाइंदे बैठे हुए हैं बोर्ड के अंदर, उमर भाई बैठे हुए हैं और अली इमरान साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद बाकी आपके जो मार्केट लीडर्स हैं, ताहिर मजूर चौधरी साहब बैठे हैं, कामरान गोल्डबानी साहब बैठे हैं, जितनी आपकी यहाँ पे ब्रांदत रोड की राना लतीफ़ भाई बैठे हैं, इनको आप अपने इश्यूज बताएं क्योंकि ये तो डेली बेस के ऊपर चेंबर आते हैं, डेली बेस पे हमारे साथ इंगेज हैं। आपके जो इम्पोर्ट्स के इश्यूज मुझे याद है बहुत सारे चल रहे थे, उस पर भी सदर साहब ने यहाँ पे एक फैसला किया है कि इम्पोर्टर्स फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, डेस्क बना रहे हैं, ताकि जो इम्पोर्टर्स के इश्यूज हैं उनको कैसे स्टेट बैंक के साथ इंगेज करना है, उनको कैसे कस्टम्स के साथ इंगेज करना है, उस पर तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने काम शुरू कर दिया। और एक और प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू किया, मैं इत्तेफाक से मैं और मोहम्मद अली मियां साहब उस मीटिंग में बैठे हुए थे जब डिप्टी कमिश्नर लाहौर आए, तो प्रेसिडेंट साहब ने ये जो पब्लिक टॉयलेट्स का इशू आ रहा है कि मार्केट्स के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई और बोला कि आप हमें जगह दें और ये पब्लिक टॉयलेट्स के इशू में एड्रेस करना है। और तीसरा जो आपका इंक्रोचमेंट का इशू था, उस पर भी सदर साहब ने DC साहब से, सदर साहब आपकी दोबारा मीटिंग है ना अभी डिप्टी ऑफिस वेरियट कि सर ब्रांदत रोड ने हमें बड़ा प्यार, इतना शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं कैंपेन में आप लोगों के साथ था, मैंने आप सबको देखे, आप सब ने एक बंदे ने 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 जिसके पास जो वोट थे आप लोगों ने डलवाए में PPP अलायंस आपकी वजह से बैठे हुए हैं, आप में से हैं। पहली दफा मैं समझता हूँ हकीकी नुमाइंदगी आई है, इससे पहले तो सिर्फ मारूसी सियासत और इस तरह की सियासत चल रही थी चैम्बर के अंदर। आप गुलाम तबस्सुम बैठे, मैं I am very grateful to all of you. Thank you. शायद ऐसा भी मेरा भतीजा है और मैं अपनी पूरी टीम को प्यार की और ये जो PPP अलायंस बना है इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसमें हमारे बहुत से मेरे चेयरमैन अर्जुन प्रसाद साहब, मेरे चेयरमैन जनाब फ़हीम सैगल साहब, वेटरन चीफ अर्जुन प्रसाद साहब, बाबर महमूद साहब, निशान मलिक साहब जो कि सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स भी बनाए गए हैं, उसमें ताहिर मंजूर साहब जो कि हमारे लीडर हैं ब्रांडत रोड के, उसमें सजाद अफजल साहब है, मनान साहब है, राना नदीम है, अवतार साहब है, लाला यासर है, फिर उसमें हमारे चेयरमैन हसाम असद साहब हैं, उस्मान मलिक साहब हैं, चौधरी अली इकबाल साहब हैं, खालिद साहब हैं जो कि हमारे इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है SVP है, और मेरे बड़े प्यारे भाई शाहिद नजीर साहब है, और अपनी पूरी टीम को, PPA की पूरी टीम को जिन्होंने बहुत मेहनत की, खास तौर पर ब्रांडत रोड के लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया। और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त जनाब जवेद सिद्दीकी साहब, जिसको मैंने स्पेशली इस कैंपेन के लिए रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मैं तो इस वक्त इस पोजीशन में हूँ तो मैं कैंपेन भी नहीं कर सकता, लिहाजा आप मेरी जगह पर कैंपेन के फ़ायदे अंजाम दें। उन्होंने प्यार की कैंपेन को बहुत आला तरीके से भारतों में चलाया। एक नतीजा और है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, वो तशरीफ लाया अली इमरान, वो भी मेरा फैमिली मेंबर है। तो अब लोग चाहता हूँ तो हम कितने नंबर ले गए थे, कितने मेंबर साढ़े थोड़े गए
पिछले साल तो तकलीफ ही दिया मैं लाने भी नहीं, मैं तकलीफ देनी भी नहीं चला था लेकर वो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है यहाँ पर तशरीफ नहीं लाया, पता नहीं शायद अली साहब ने शाम साहब ने उसको बुलाया या नहीं, और सलीम साहब ने भी खुरम लोधी साहब वो मेरे क्लास में चाइना है जी, चाइना क्या अल्लाह, और मेरे लीडर जनाब मियां मोहम्मद अली साहब, उनको भी मेरी तरफ से को पीटीए की पूरी टीम को मेरी तरफ से सिटी ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। वो यहाँ बैठा हुआ तो एक किधर गए नॉलेज भी है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि वो उन हसाम साहब के साथ मेहनत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले को आमिर रियाज साहब को, उमैर इस्माइल साहब को हमें खुशी है जी, जिस तरह आप लोगों ने हमारे साथ इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक मोहब्बत का इजहार किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि झोलियाँ भर भर के आप लोगों ने में जो है वोट डाले हैं, और आप लोगों ने इस कैंपेन को लाहौर चैम्बर की 100 साला कैंपेन की सबसे बड़ी कैंपेन बनाया, और उस कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 साला तारीख के सबसे ज़्यादा वोट लेकर लाहौर चैम्बर के अंदर। फैज साहब ने जैसे बताया कि जाहिर है जब हम ज़रा कहते हैं 100 साला तारीख के, तो फिर तकलीफ का लेवल भी ज़रा हमारे दोस्तों का, कुछ दोस्तों का ज़रा थोड़ा सा बढ़ जाता है। से जब ये पूछा गया कि आपके पास, उनका वकील बहुत बड़ा था, ये मुझे मानने में कोई आर नहीं है कि वो हमसे, हमारे सारे वकीलों से काफ़ी बड़ा नाम था और ज़्यादा बड़ी फीस के साथ जो है वो किया गया था। तो जब 5.5 घंटों में उनसे पूछा गया, बार बार पूछा गया, क्या आपके पास कोई सबूत है कि इलेक्शन के अंदर बेकायदगी हुई है, तो वो कैटेगोरिकली वो रिकॉर्ड के ऊपर बात वहाँ पर मौजूद है, नहीं मेरे पास कोई सबूत है। शाहिद नज़ीर साहब के साथ मिलके, उमर सरफराज के साथ मिलके ब्रांडरथ रोड, रहमान गलियां, रेलवे रोड की ना एक एक नुक्कड़, एक एक कोना कैंपेन के दौरान विजिट किया, और आप यकीन करें वन बाय वन बंदे बंदे से जाके हमने वोट मांगे, और वो लोगों ने हमें हमारी झोली वोटों से भर दी। मैं अपने जो हमारी कारोबारी बरादरी की ज़रूरत है, देखिए जिस तरह अभी जिक्र किया, ब्रांडरथ रोड, बदामी बाग, ये हाल रोड, अनारकली, शालमी, लिबर्टी, ये लाहौर की करीब मार्केटें हैं, और लाहौर का जो एक बड़ा रेवेन्यू है इन मार्केटों से जाता है। अभी पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने इतनी ज़बरदस्त बातें की, और मैं सोचता था कि हमें इस तरह का एक ब्रेव और एक बोल्ड चेयरमैन चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की आंखों में से 60% 50% रेवेन्यू लाहौर के इंपोर्टरों का जाता है, लेकिन वो खाता कराची का गिना जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स की मद में और सेल्स टैक्स की मद में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रेवेन्यू जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट लाहौर की चंद मार्केटों से जाती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सवाल करते हैं, हम मार्केट वालों को इज्जत चाहिए। जिस तरह अभी आपने ट्रैफिक पुलिस का मसला उजागर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। खुदा की कसम, सड़कों पर जिस तरह हमारी तजलील की जाती है, हमारी लेबर क्लास की, रिक्शे वालों की, टैक्सी वालों की, रेडी वालों की, अफसोस होता है कि हम इतने बेबस हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों इससे बड़ा लतीफा क्या होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है, वल्लाहु आलम, मैं तस्दीक नहीं कर सकता। एक गाड़ी वाले का चलान कर दिया, कार सवार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, अंदाजा कर, यानी ये नाअहली की ये हालत है। इसी तरह आप दीगर डिपार्टमेंट देख लें, हमारी मार्केटों में लेस्को क्या क्या काम कर रही है, हमारी मार्केटों में LWMC क्या काम कर रही है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि मार्केटों के जो जुमला मसाइल हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट की क़यादत में इनकी कायदाना सलाहियत के ज़ेरे साया वो अपने तमाम ओहदेदारान को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त की किल्लत है, मैं इसी बात पे इत्तफाक करते हुए अब आगे अपना कहूँगा कि प्रोग्राम चलाते हैं। थोड़ा सा रखिएगा, ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। के हवाले से की बात हो रही है, चल रही है, तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इंक्रोचमेंट FBR को भी आपने, मेरे ख्याल में जो मेरी असेसमेंट है, मुमकिन है
उसमें कितने फीसद सही है या नहीं उसको भी चेक कर दिया आपने, जो मेरे नोटिस में है काफ़ी हद तक, जो कि बिला उधर बगैर बताए एक हमला अवर की तरह अटैक करते थे और आते थे कारोबारी अदारों में, उसको भी आपने माशाल्लाह, ये भी आपको सल्यूट है हमारी टीम की तरफ से, ताजिब की तरफ से, कि आपने बड़े आसान तरीके के साथ उनको चीज किया और जिससे हमारी ताजिब बरादरी महफूज हुई है। अगली बात ये कि यहाँ पर एक और मैं मसला बेशुमार दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही अजीब है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ आई है आपकी यहाँ पे आने के बाद, वो है पासपोर्ट सेक्शन। पासपोर्ट सेक्शन में ऐप जो दे रही थी 4 माह का टाइम दे रही थी, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये हैं सिर्फ चैम्बर के मेंबर और उनके अनमैरिड बच्चों के लिए या उनके वालिद के लिए, शादीशुदा बच्चों के लिए नहीं है। एक तो उसमें आपसे ये भरपूर अपील है बेशुमार लोगों की, सारी बात है, हम भी आपके मार्केट में वर्कर बैठे हुए हैं, नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, आलादेदार हैं, अच्छे फोरम पे जाते हैं, बात करते हैं और हमारे लिए मसाइल का हल ढूंढते हैं। तो जो मार्केट्स में डिमांड करते हैं लोग, उनकी बात मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, वो ये है कि पासपोर्ट सेक्शन, नाजायज़ तजावुज़ात, उसके अलावा और दीगर ऐसी चीज़ें हैं कि क्या इसमें ये मुमकिन है कि ऑर्डनरी पासपोर्ट बनता है 10 या 20-25 दिनों में, तो यहाँ पे अर्जेंट की बारी नहीं आती, 2-2 माह ऐप पे नहीं आती। एक तो इसका हल निकालिए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बुजुर्ग या नौजवान या जिन्होंने भी जाना, उम्र हज पे जाना होता है, ये बड़ा इशू है, या बाहर पाकिस्तान से बाहर जाना होता है, तो रिन्यूअल हो ही तो जाएंगे या नया बनवाएंगे तो जाएंगे। इसका हल ढूंढिए, ये बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारा इसके साथ जो मेन कंसर्न है ना, वो है ट्रेड का भी, ट्रेड का भी बड़ा मेन कंसर्न है। इसको इस पर ज़रा बड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ज़ेरे असर है, आपके अंडर है, ये में या आपके चैम्बर में मौजूद है। इसका सलूशन आप लोगों ने निकालना है। तो मैंने ये ब्रांचोड की, पब्लिक की, चाहे वो रिचिस्ट हो, गरीब हो, अमीर हो, सफ़ेद पोश हो, ये मैं उनकी आवाज़ बोल रहा हूँ, अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ, ठीक है। बल्कि मैंने भी लास्ट टाइम आपके आने से पहले जब रिन्यूअल करवाई थी, सामने भी वो ख़त्म हो गया पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ से करवाई। तो एक तो ये मजबूरी है, ताजिब बरादरी बैठी हुई है, अपने तजारती अदारों के बाहर। बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद भी मैं मुबारक देना चाहूँगा जी अबूजर शाह साहब और सीनियर उस्मान खालिद साहब, फिर अगेन शाही नज़ीर मेरा भाई। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा जी कि यहाँ पे माशाल्लाह हमारे दोस्त सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली मियाँ साहब, इलेक्शन कमीशन बाबर महमूद साहब, ताई मंजूर साहब, सजाद अब्दुल साहब, राना नदीम साहब स्पेशली जी ग्रेट पर्सन। उसके बाद जी बहुत सारे बंदे हैं जिनका नाम ना ले सकूं तो माजरत। आज यहाँ पे आने का मकसद जो है वो इलेक्शन मुबारकबाद है, मैं इससे हट के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। इलेक्शन जब स्टार्ट हुए तो बहुत सारे बहुत क्रिटिकल हालात थे, अलायंस नए बने पुराने टूटे, जिसकी वजह से किसी को कोई तयन नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो हमारी महालत पार्टी के जो अलायंस था वो बहुत बड़ा था और उस वक्त मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम लोगों में बातें ये चल रही थी कि जी 30-70, 60-40, 50-50 इस तरह रेशो ऊपर नीचे रोजाना की बुनियाद पे आती थी जाती थी। फिर एक अलायंस बना PPPA, जिसमें अंजम नसार साहब, अली हसन साहब, उस्मान खालिद साहब, इनका इत्तेहाद हुआ, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को मेकअप किया और अपने इलेक्शन को लेके निकले और वहीं से स्टार्ट होती है हमारी असल कैंपेन। हमारा अलायंस जब ये बना तो उसी वक्त हमारे जो बाजार के लीडरान थे मुख्तलिफ बाजारों के, जैसे हार रोड, शामी मार्केट, ट्रांसफर रोड, इस तरह की जितनी भी बड़ी मार्केटें थी, चार्ज होना शुरू किया और अपने वोटरों को चार्ज करना शुरू किया। फिर किसी बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मोहम्मद अली मियाँ साहब, आपको याद होगा कि अंजम नसार साहब ने, अली साम साहब को भी याद है, एक मीटिंग बुलाई थी
ब्रांथल रोड के मुतल्लिक़, चूँकि हमारा तल्लुक़ ब्रांथल रोड से मेन कमान गलियाँ रेलवे रोड के साथ है, इसलिए उसी हवाले से बात करूँगा। तो उस दिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमारी क्लास लगी थी। ये जो 30, 35, 40 बंदे हम मेन ब्रांथल रोड को लीड कर रहे थे, वहाँ के चूँकि 1200 वोट एसोसिएट क्लास का है और बेशुमार वोट कोऑपरेटिव क्लास का है, तो वहाँ में मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हमें काफ़ी शर्मिंदा किया था और उस शर्मिंदगी के बदले में फिर हमने भी इसका चार्ज संभाला। वहाँ पे बात चली थी ऑफिस बनाने की, उसामा का एक ऑफिस, एक अली इमरान साहब के हवाले से आसिफ लतीफ़ साहब का, तो तय करार ये पाया कि आसिफ लतीफ़ साहब का जो है वो ऑफिस बनेगा। नेक्स्ट डे उसकी ओपनिंग के लिए बाबा कमल साहब वहाँ पे आए और तमाम ब्रांथल रोड के वहाँ पे लीडरान इकट्ठे हुए, जिनमें माशाल्लाह ये अपने उमर सरफराज साहब, अली इमरान साहब का तो ऑफिस था ही था, अली उस्मान साहब, हमारे प्रेसिडेंट सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन फयाज साहब के फयाज साहब, ये हमारे कैंडिडेट जो कबूल साहब से बता रहे थे, हमारे कैंडिडेट है, हमारी पूरा इत्तेफाक था कि इनको ही लेके आएंगे आगे। अब ये इनकी मजबूरियाँ आ गई क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को मैं बना लिया था और इनके इत्तेफाक हुए थे। हमारे इसी मेंबर भी यहाँ पे आपके, तो आपकी सिटी ट्रेडर्स शाह नज़ीर साहब वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जितने इलेक्टेड डीसी मेंबर हैं, उमर सरफराज हैं, अहमद साहब हैं और हमारा प्रोस्पेक्टिव लीडर मनान है, सजाद साहब जिनकी लीडरशिप में तमाम ब्रांड्स और तस्लीम हुआ। और जो एलिगेशन हम पे आ रही थी कि ये वो अपोजिट ग्रुप कह रहे हैं हम वीक हैं, तो हमने बता दिया कि हम वीक नहीं हैं, सबसे ऊपर हैं। तो ये सिलसिला था, हमारे लीडर जनाब और भी सारे इकबाल साहब बैठे हैं, बहुत मेहनत की है, और हमारे टेक्सटाइल के गुलवानी साहब बड़े दरीना साथी हैं, और बड़े सारे जितने दोस्त साहब, सबका बहुत शुक्रिया। और आपके जो लीडर हमारे भी लीडर थे, माना कराम अलाई साहब, तो हमारा और आपका ताल्लुक पाकिस्तान करने के बाद से ही है। हम यूसी मार्केट में, आप यूसी मार्केट में, तो हमारा आप पूरी हमारे साथ के बाद सबसे टॉप पे आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोस्तों ने कहा कि उधर यही कि ना वो किसी ने बताया पहले मुझे जरा एक और जगह भी जाना है, और तो इसके बाद मैं ये यानी कि प्रोटेक्शन महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग जिनकी हमें, जैसे मैं बात करूंगा, जिसकी पेशरफ्त भी कमिश्नर से भी अभी आके साइन लिए तरीके से, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज है जो इन्होंने पहले नाम ले लिया है, स्मोक है और दीगर मामले, और इनके साथ हमने 3 माह जो है ना कंपेन चलाई है। तो दोबारा ना फिर मेरे लीडर खालिद साहब, नेक साहब हमारे लीडर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ, सबको सलूट करता हूँ। किसी किस्म के हरासा के साथ, एहतियात की हरासमेंट के साथ नहीं है। जो बात आपने हलफ की है वो ऑलरेडी टेकअप कर लिया। अब आपको मैं इसलिए बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बात हुई है वो मैं आपको समझा दूँ। गाजी खान पर हजारों पेट्रोल पंप है, किसी पे कैमरा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट बेचती है, वहां क्यों नहीं कैमरा? मैंने कहा आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि आप अपनी जो चीज प्रोडक्ट बेचते हैं उस पर कैमरे की जरूरत नहीं है, एक 10 बाई 10 की दुकान पे कैमरे की जरूरत है। तो खुदा के लिए विन विन पोजीशन करें, ना ऐसा काम करें, ना मजबूरी करें कि लाहौर बंद हो। एक दिन लाहौर बंद हो ना तो 10 अरब रुपए का नुकसान है गवर्नमेंट को। अगर पूरा पाकिस्तान बंद हो गया ना 100 अरब रुपए का नुकसान है, ये मैं आपको अभी बता दूं। तो गवर्नमेंट को बात समझ आई, हमने मिलके चलना है, इज्जत दे, इज्जत ले, स्टैंप पेपर देंगे। तो मेरी आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, मैंने जो अफसर जिस दिन ज्वाइनिंग करेगा उस दिन की उसकी एसेट को हलफनामा देगा, और जिस दिन रिटायर्ड होगा उस दिन भी हलफनामा देगा। इससे ज्यादा बात नहीं होती। विन विन पोजीशन, हम चोर है, आप भी चोर है, दोनों देंगे एक दूसरे को। बात इस तरह मुल्क नहीं चलते, ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे पे, सिस्टम चलेगा। आपके इल्म में एक बात गुजारिश कर दूं, पिछले साल आपने सिर्फ 2 अरब रुपया एक आरटीओ को दिया था, इस दफा 12 अरब रुपया आप लोगों ने दिया है।
एक RTO 3 RTO है लाहौर के, मतलब 600 गुना हमारे कारोबार में तरक्की नहीं हुई और लोगों को अवेयरनेस आ गई है। हम आपकी पूरी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब ये बात मैं आप हाउस क्यों उस्मान साहब को दिया है, हम लोगों ने इनको ट्रेन करना है। पहले ग्रुप ये नहीं करता था, सबसे बड़ी तब्दीली आपको नजर आई है, कैश भी हाउस ले रहा है। मैं सिर्फ मॉनिटर करता हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ। क्यों? अगली टीम तैयार करके नहीं दूंगा तो मुझे बताएं अगला प्रेसिडेंट क्या करेगा। इसलिए एज ए ऑब्जर्वर मैं और मियां मोहम्मद अली साहब बैठे होते हैं, अली साहब, हम देख रहे होते हैं हाउस में क्या इशू है में। तो जो आपके दिल में बात है ना, वो ऑलरेडी 25 दिन पहले मैं कर चुका हूँ सारी बात। आप फिर को जनाब चेयरमैन अली इस्लाम असगर साहब, मेरे लीडर मोहम्मद अली मियाँ साहब, जनाब खालिद बिन वलीद साहब, बाबर महमूद साहब, बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान बैठे हुए थे, सजाद अफजल साहब, ताहिर मंजूर साहब, जिशान सैयद मलिक साहब, आगा साहब, दादा यासिर साहब, मैं और सिटी ट्रेडर एसोसिएशन से फयाज साहब और उनकी तमाम सिटी ट्रेडर एसोसिएशन की टीम को दिल के अदा करेंगे, उसे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा इस इलेक्शन में बखूबी साथ दिया। और सिटी ट्रेडर एसोसिएशन तो 2-3 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन जो इलेक्शन लड़ा है, ये मेरा भाई जावेद साहब बैठा हुआ है, इलेक्शन इन्होंने लड़ा है। इलेक्शन लड़ा है तो सलीमुल्लाह साहब ने लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है तो फ़हीम साहब ने लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है तो शहजाद साहब ने लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है तो मेरा भाई उमैर इस्माइल बैठा हुआ था, उसने लड़ा है। शेख नासिर साहब मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं बता नहीं सकता। जनाब शेख नदीम साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने जगह जगह जाकर जिस तरह मेरे लोगों को निकाल कर वोट कास्ट कराए हैं, मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ। राना अकरम साहब भाईजान मेरे साथ डोर टू डोर मेरे साथ कैंपेन किए, मैं इनका दिल की अदा करने से शुक्रिया अदा करता हूँ। अली चौधरी साहब का नाम ना लूँ तो ये भी मुनासिब ना होगा। राना नदीम साहब डोर टू डोर मेरे साथ जाते रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसामा अयूब जी हमारा हीरो था और अभी नजर नहीं आ रहा, आज मैंने फोन भी किया, कॉल बैक आ रही थी तो मैं उसको फोन नहीं उठा सका। पर सर अभी भी शायद मैं अपनी बरादरी का पूरी हर एक का नाम नहीं ले सका, लेकिन अब मैं इसको एंड करता हूँ इस तरह के मेरे हाफज के हो तो मेरे डांड के हो, मेरे टीचड़े हो तो मेरे खरमंदे हो। मैं थोड़ा दिल की अता में रही तो शुक्रिया अदा करना सकता। इस तो बाद सर मैं समझना कि तकरीबन 7 बूथ सन बरांदर रोड दे विच ते 4 तो 5 बूथ साडे शेख बरादरी दे सर एक मैं सर दूसरा लोहा मार्केट हमारे 10 में से 6 हमारे थे, मोहम्मद अली मियां साहब 10 में से 6 ते लोहा मार्केट, लिंडा बाजार, स्टील शीट मार्केट, अल हदीद बाजार, रहमान गलियां, बरांदर रोड, मैं समझना है मियां अंजुम निसार की मार्केट है, प्याज की मार्केट है। ना हमारी सफ़ों में कोई दरार डाल सकता है और ना ही अल्लाह के हुक्म से मार्केटों में हमारा कोई मुकाबला कर सकता है। शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब के और अपने दोस्तों के। तो मुझे गुफ्तगू के लिए क्या दिया गया, सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडेंट मियां अबूजर शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ साथ शाहिद नज़ीर साहब, इसी तरह खालिद उस्मान साहब और मियां मोहम्मद अली साहब, अली हसान साहब जो हमारे नौजवान क़यादत है, इस तरह उस्मान मलिक साहब, और इन तमाम अहबाब का मैं बेइंतहा मशहूर हूँ कि जिस तरह इन्होंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। तो हम अल्लाह ताला से भी दुआ गो हैं और अपने दोस्तों से के भी शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और आपकी उमंगों और तवक्कों के ऐन मुताबिक तमाम अहबाब को काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट साहब, एसपीटी साहब, ड्यूटी साहब, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग शुरू हो रही है 10 मिनट के बाद, तो मैं समझता हूँ मैं 5 मिनट में ही अपनी बात मुकम्मल करूँगा। मैं समझता हूँ कि आज आपकी जो बात है CTA की,
سب کا نام لوں گا تو ٹائم ہو جائے گا، میں ایک ہی نام لیتا ہوں، شیخ شاہ صاحب جو ہمارے پلیجر سیکھنے کے تمام ٹیم بھی یہاں تشریف لائی ہے. آپ نے یاد ادا کر دی ہے اپنی تمام کمپین کی، اپنی تمام محنت کی، اور خاص طور پہ جو آپ نے شیخ سفراز صاحب آپ کے بات نہیں لگا ہوں، اور خاص طور پہ جس طریقے سے آپ نے تاریخی استقبال ترتیب دیا وہ کبھی نہیں بھولے گا. اور یہ بات عام طور پہ صدر صاحب کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھگتا ہوا ہے کہ کوئی گال نہیں، دوسرا بتائے کو آئے گا نا اپنا ایسے ہی لگ رہا. اور وہ ایک تاریخی کمپین تھی، ویری ویل مینج، اور بہت پیار محبت آپ لوگوں سے میں نظر آیا. ایک حقیقت مان لیتے ہیں آپس میں بیٹھا دوست بیٹھے ہیں کہ یہ الیکشن بڑا مشکل الیکشن تھا، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور تاریخ کا پہلا الیکشن تھا جس میں کہ نئے نئے الائنس ٹوٹ رہے تھے، نئے نئے الائنس بن رہے تھے. یار یہ دوستی اسٹیک پہ تھی، رشتے داریاں جو تھی وہ آزمائش میں تھی. دوست یار 30 سال پرانے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، پوچھنا مشکل ہو رہا تھا تو کدھر ہے گا یار. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹائم تھا جس میں کہ ہمارا بھی جو الیکشن لڑا رہے تھے اور آپ دوستوں کا جو کہ ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے الیکشن، ایک امتحان تھا، بڑے مشکل مقابلہ ہے. ایسوسیشن کے اندر یہاں ٹھیک ہے میری باقی بھی دوستوں میں بڑے مشکل مقابلہ ہے. میں سمجھتا ہوں میرے اوپر خود بڑے 30 سال پرانے دوست شکلیں چھپا رہے تھے یا آنکھیں دکھا رہے تھے یا ٹھول اشارہ کر رہے تھے. یہ ایک حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے. آج یہ باتیں کرنے خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ سب لوگ اس امتحان سے سرخرو ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوتا تھا صرف ایک ہی ہے میرا جو بیٹا سرفراز کہ یار طالب آدمی کدھر ہے، ایک جواب سی میرا فکر نہ کرو. تو میں نے فکر نہیں کیا شیخ صاحب، آپ نے ثابت کیا ہے، آپ نے ثابت کیا ہے کہ سی ٹی اے کے دوست اکثر کھل کے ساتھ تھے اور کچھ دل کے ساتھ تھے. دونوں طرف میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جی، اور اس میں کسی سے گلا کوئی نہیں ہے کیونکہ امتحان تھا. اتنے پرانے تعلقات اتنی پرانی برادری، اور پھر پیچھے جو شیخ سفراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کسی نے نام تک لیا نہیں ہے. ان کا بہت بڑا رول ہے آپ کی برادری کے اندر، برادر ہوڈ کے اندر. انہوں نے ہیرا دے دیا عمر سفراز دے کے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی ان کے اپنے مارکیٹ میں اپنی ٹریڈ میں بھی بڑا امتحان تھا، لیکن جس طریقے سے کامیابی دی ہے کیونکہ ہمارا آپ سب کا جو ایک منظر تھی وہ ایک ہی تھی کہ لاہور چیمبر اور پی 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 الائنس، میں سمجھتا ہوں جس کی ایک کمپین چلی، ایک ہوا چلی. جب ہمارا نہیں ہو رہا تھا الائنس علی صاحب کے ساتھ تو بڑے پریشر تھے. آپ نے سی ڈی اے میں سے وہ کیوں نہیں کرنے لگ گئی یا کیوں نہیں ہو گیا. یہاں پہ وہ فہمزہ بیٹھے ہوئے وہ اس میں لمبی تقریر کی چلے گئے جانتے نہیں ہو سلیم اللہ صاحب باقی اپنا سب دوست. تو یہ ایک نیچرل تھا. پریشر آیا، اور جب پریشر آیا اور جیسے ہم نے پھر الائنس کیا تو پھر نہ کوئی انجن صاحب کو روک سکا، نہ علی صاحب کو، نہ خالد عثمان کو. آپ کو کوئی روک نہیں سکا. آپ مقابلہ ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اگلی تیاری ہے ہماری انشاءاللہ ڈلیور کرنے کی. اور صرف 2 الفاظ خالی کے ڈی جی ٹیوں کے پاس وہ بھاگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے بہت زیادہ. ان کو پتہ ہے کہ ان کو آپ دوستوں نے ووٹ نہیں ڈالے، ان کو لاہور نے ووٹ نہیں ڈالے. جتنے ان کے ووٹ ڈل گئے وہ بھی ایک عجوبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ ڈلے ہیں، ورنہ تو جو ایک منشور تھا، ایک پرسنالٹیز تھی، جو کمپین تھی، وہ ان سے بہت آگے تھے. اور میں تو یہی کہوں گا نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے. بہت بڑی جناب فیاض احمد صاحب چیئرمین، جناب سلیم اللہ صاحب صدر، فاروق احمد صاحب، جناب فہیم محمود صاحب، جناب جاوید صدیقی صاحب، جناب شہزاد نذیر صاحب جو کہ میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی ہے ماشاءاللہ، اور جناب ندیم نذیر صاحب، عاصم مبشر صاحب، جناب ذیشان افتخار صاحب، زاہد سرفراز صاحب، عبد الرحمان صاحب، ناصر صاحب، جناب عمیر صاحب، ملک عثمان صاحب، غلام حسین صاحب، علی بھائی،
رانا اکرام, کیونکہ یہ سارے وہ دوست ہیں اس لیے نام لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو جس طرح ہمارے ساتھ محنت کی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی نام لے سکوں وہ میں لوں, اور جو ہے ان کی معذرت چاہتا ہوں میں. تو آپ کو میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ویلکم کرتا ہوں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی میاں صاحب اور ہمارے چیئرمین پائنیئر بزنس مین گروپ علی حسام اصغر صاحب, خالد صاحب اور میرے نو منتخب ای سی ممبران, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. بہت ساری باتیں ہوئی ہمارے درمیان, اور خاص کر جناب سلیم اللہ صاحب نے, جناب فہیم محمود صاحب نے, جناب جاوید صدیقی صاحب نے جن جن مسائل کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے وہ آلریڈی صدر صاحب کے نوٹس میں ہے, اور ان چیزوں پہ ایک بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. اور علی حسام صاحب نے بھی آپ کو کچھ جواب دیے ہیں, کچھ محمد علی میاں صاحب نے بھی, صدر صاحب نے بھی, ایس پی پی صاحب نے بھی, سبھی نے. تو آپ ہم پہ یقین رکھیں کہ آپ نے جس طرح یقین سے ہمیں ووٹ دیے ہیں, ہمیں کامیاب بنایا ہے, تو ابھی تھوڑا سا آپ صبر کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے معاملات آپ کو بہتر ہوئے نظر آئیں گے. ملک عثمان صاحب کدھر بیٹھے آپ؟ ملک عثمان صاحب نے کہا کہ جی اسپورٹس مین شپ, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہی ہے کہ اسپورٹس مین شپ ہونی چاہیے, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, اور بالکل صاف شفاف الیکشن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, یہ کوشش کی جا رہی ہے جانتے بوجھتے بھی. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ پرسنالٹیز کون ہیں, ان کے آپ چہرے دیکھیں, ان کی عمریں دیکھیں, اور ان کے آپ کام دیکھیں. صرف ہمیں ان سے ہمدردی ہے کہ, اور ہماری دعا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ وہ 23 تاریخ کو ہارے, پھر 24 تاریخ کو ہارے, ابھی بھی جب فیصلہ آیا ڈی جی ٹی او کا پھر ہارے. اب آگے کتنا وہ ہاریں گے اور کہاں تک وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم نے ان کو الیکشن ہرائے, سیاسی جنگ میں ہم نے ان کو مار دی, اور اب الحمدللہ قانونی جنگ میں بھی ہم نے ان کو مار دی, اور آگے ابھی بھی ان کی تسلی اگر نہیں ہو رہی تو ہم آگے بھی حاضر ہیں, اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو مسائل آپ نے بتائے وہ آپ دیکھیں گے بہت جلد اس کو پورا ہوتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بھائی جان, تھینک یو. ہو گئے بندے جی سر, ریڈی سامنے. ہو گئے, تھینک یو جی. بندے جی سر, ریڈی سامنے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.